Assalamu alaikum. Good morning, dear students. In our last class, we have discussed about data, the types of data, different code systems to convert the text into binary format, and then we have discussed about images, audio, and video, and how to convert images, audio, and video into binary format. We have seen different schemes. Today, we will talk about the data transmission. This is today's agenda. Firstly, we will see what is data communication or data transmission. Then we will see the modes of data communication, and then we will discuss about parallel and serial data transmission. Firstly, what is data transmission is? Well, this is the process of transferring data between two or more digital devices. For example, two computers, from a computer to a laptop, from a desktop to a laptop, from a mobile phone to a computer, two digital devices. The data can be transferred from one digital device to another digital device. Okay, now this data can be transferred in analog form or in digital form. Basically, data transmission enables devices or components within devices to speak to each other. They can speak with each other. The devices can speak with each other. They can communicate with each other. By data transmission, they can transfer the files. They can transfer different forms of data within the machines. So this is a way of communication between डिजिटल डिवाइसेस. दे कैन स्पीक विद ईच अदर. एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं. जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन है. डेटा कम्युनिकेशन क्या है? दिस इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग विद ईच अदर between the digital devices. Okay, and then there is term communication. Now what is communication? Rather, communication channel. What is communication channel? It is basically medium. Which medium? Through which this data can be transmitted. The medium through which this data can be transmitted from sender. Sender is also known as transmitter. So from sender to a receiver. Okay, the sending machine, the source from where the data is to be transmitted is called sender, and the destination is called receiver. Obviously, when the data will be sent, there should be one sender and there should be one receiver. Sender is also called transmitter or source, and receiver is also called destination. एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजना है, तो उसके लिए हमें कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होगा. वो चैनल कौन से हो सकते हैं? इट मे बी कॉपर वायर्स, सिंपल कॉपर वायर्स. कोई कोएक्सियल केबल आप यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू आप डेटा को भेज सकते हैं. कोई ऑप्टिकल फाइबर्स, it's a very fast way to transfer the data. You know, this light pulses travel in it rather than the traditional electric pulses which travel in copper wires. And और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स. इसके अलावा और वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. तो ये थोड़ा सा हमने बात की है डेटा ट्रांसमिशन की. डेटा ट्रांसमिशन क्या है? इट्स अ वे ऑफ सेंडिंग द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. इट मे बी इन एनालॉग फॉर्म और इट मे बी इन डिजिटल फॉर्मेट. Okay, so in this way the computers or the machines or the digital devices can speak with each other. They can communicate with each other. Obviously, when they need to communicate with each other, they need some channel. They need some medium. And that medium can be the copper wires, the traditional copper wires, for example, the coaxial cable, or maybe optical fibers, or it may be a wireless communication. Now let's discuss the communication modes, the data communication modes. Basically, there are three data communication modes: simplex, half duplex, and full duplex. Now what is simplex? Simplex is a one-way communication.
data in a simplex channel is always one way. It is transmitted in only one way. The communication is unidirectional. यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही सिम्त में, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगी. एज ऑन अ वन वे स्ट्रीट, जिस तरह एक वन वे स्ट्रीट या वन वे रोड पर आप देखते हैं ट्रैफिक एक ही साइड पे जा रही होती है, दूसरी साइड से नहीं आ रही होती. सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड. तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन में भी सिंप्लेक्स मोड में सिर्फ डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा होगा, दोनों में नहीं होगा. ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट. अगर एक लिंक इस्टेब्लिश हुआ है दो डिवाइसेस के दरमियान में, तो एक डिवाइस ही भेज सकता है डेटा को. द अदर कैन ओनली रिसीव. दूसरा सिर्फ रिसीवर का काम करेगा. एक ट्रांसमीटर होगा और दूसरा सिर्फ रिसीवर होगा. द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन. तो जो चैनल की एक कैपेसिटी होती है, इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो जो किसी भी चैनल की कैपेसिटी होती है डेटा ट्रांसफ़र करने की, वो सारी की सारी सिर्फ ट्रांसमीटर के लिए ही यूज़ होगी. ऑब्वियसली जब एक ही सिम्प में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल होगा, तो सारी की सारी कैपेसिटी सिर्फ ट्रांसमीटर ही यूज़ करेगा. रिसीवर ने जब डेटा भेजना ही नहीं है तो उसको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो द होल कैपेसिटी विल बी यूज बाय द ट्रांसमीटर. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस मोड, सिंप्लेक्स मोड. सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल्स कौन सी हैं? टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जांपल्स ऑफ सिंप्लेक्स मोड. आप देखें टीवी में जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है वहाँ से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, एंड वी आर द ओनली रिसीवर्स. हम अपने टीवी पे सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं सिग्नल्स को और देख रहे होते हैं. बैक हम उसको दोबारा उसको अपनी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहें तो नहीं दे सकते. हम उसको दोबारा से सिग्नल्स हम अपनी तरफ से नहीं भेज सकते. हम सिर्फ रिसीवर का काम कर रहे हैं, हम ट्रांसमीटर का काम नहीं कर रहे होते. सिमिलरली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी यही केस है कि एक सिम में डेटा जो है ट्रैवल करता है. एज शोन इन दिस फिगर, सिंप्लेक्स चैनल ऑपरेशन, इट इज़ ऑलवेज वन वे operation. Okay, the data travels only in one direction. As the arrow shows, the data only travels in one direction. Now the next case is I'm sorry, the next case is half duplex. Now in half duplex, the data can be sent इन बोथ डायरेक्शंस. डेटा दोनों डायरेक्शंस में आप भेज सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम. एक वक्त में नहीं होगा. डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, नॉट साइमल्टेनियसली. इसकी एग्जांपल है, वी कैन गिव एन एग्जांपल और रिजेंबल इट लाइक अ वन लेन ब्रिज. एक लेन का जो ब्रिज हो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रिज, एक ब्रिज है जिसके ऊपर सिर्फ एक लेन चल सकती है व्हीकल्स की. where two-way traffic must give way in order to cross. तो एक लेन जब चली जाएगी तो फिर दूसरी को रास्ता दिया जाएगा, एक को स्टॉप कर दिया जाएगा, दूसरी साइड वालों को छोड़ा जाएगा, फिर वो जाएगा. इस तरह का अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो ब्रिज का, जहाँ पर एक साइड पर ट्रैफिक जा रही होती है, उसका पाथ या चैनल जो होता है, उसका जो मीडियम जो जहाँ से ट्रैफिक जा रही होती है, वो रोड जहाँ से ट्रैफिक जा रही होती है, वो इतना वाइड नहीं होता. वहाँ से एक वक्त में सिर्फ एक व्हीकल क्रॉस कर सकती है. तो एक रो होगी, एक लेन होगी, उस एक लेन में से ट्रैफिक जो है वो ट्रांसमिट जारी होगी एक वक्त में. लेकिन जब उसको बंद कर दिया जाएगा, दूसरी ट्रैफिक को कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम इंटरवल्स होंगे, उस टाइम के बाद दूसरी साइड को खोल दिया जाएगा, तो वहाँ से फिर ट्रैफिक दूसरी तरफ से भी आना शुरू हो जाएगी. बट वन एट अ टाइम, वन लेन एट अ टाइम, वन डायरेक्शन एट अ टाइम. सो इन हाफ डुप्लेक्स मोड, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली. एक वक्त में एक ही साइड पे जाएगी. सो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? वॉकी टॉकी इज एन एक्सप्लॉइट ऑफ इट, इज एन एग्जांपल ऑफ इट. वॉकी टॉकी इसकी एक एग्जांपल है, जिसको हम वायरलेस भी ओल्ड डेज में कहते हैं. वायरलेस का मतलब तो हम देखते हैं कि कुछ और है, विदाउट वायर, बट ये शायद शुरू के मैकेनिज़्म थे, शुरू के टूल थे जिसमें विदाउट वायर यूज़ हुआ, तो उसको वायरलेस का ही नाम दे दिया गया था. यूजुअली पुलिसमैन यूज़ करते थे और इस तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज यूज़ करती थी. डेडिकेटेड लाइन इस्टेब्लिश होती थी जहाँ से वो अपनी कम्युनिकेशन कर पाते थे. तो वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जांपल. वॉकी टॉकी में आप देखते हैं कि
only one can speak at a time. Although this is a two directional कम्युनिकेशन, दो तरफा कम्युनिकेशन है, लेकिन एक वक्त में एक ही साइड से कम्युनिकेशन होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी ने भी इस तरह का कोई वीडियो देखी हो ओल्ड डेज की या एक्सपीरियंस किया हो, वॉकी टॉकी के ऊपर एक टाइम पे एक बंदा बात कर रहा होता है और वो जब वो कहता है ओवर तो फिर दूसरा बंदा बात करना शुरू करता है. एक वक्त में दोनों नहीं बात कर सकते. सो वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ the half duplex mode where data can be transmitted in both times but not simultaneously, not at the same time. All right, as it is shown in the figure on left, half duplex mode, two way but not at the same time. The arrow shows that the two digital devices can communicate with each other but not at the same time. So this is called half duplex operation. The next type of data communication mode is full duplex mode. In full duplex mode, data can travel in both directions simultaneously. Data can not only travel in both directions, but it can also travel simultaneously. It can also travel at the same time. Data दोनों तरफ travel भी कर सकता है और एक ही वक्त में कर सकता है. Unlike walkie talkie, इसमें आप डेटा एक ही वक्त में ट्रैवल कर सकता है और दोनों सिम्ट में, दोनों डायरेक्शन में एक ही वक्त में ट्रैवल कर सकता है. देयर इज़ नो नीड टू स्विच फ्रॉम ट्रांसमिट टू रिसीव मोड. इसमें स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है. इन हाफ डुप्लेक्स मोड या वाकी टाकी में स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है. एक ख़त्म करता है, वो एक मैसेज भेजता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ओवर का मैसेज भेजता है कि आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर लिया है, आप दूसरी तरफ से बात करना शुरू हो, तो अब वो ट्रांसमीटर के बजाय रिसीवर का काम करना शुरू कर देगा. तो इसमें ये ज़रूरत नहीं है, स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू स्विच फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर मोड लाइक इन हाफ डुप्लेक्स. सो इट्स लाइक अ टू लेन ब्रिज ऑन अ टू लेन हाईवे. इसको आप रिजेंबल कर सकते हैं एक टू लेन ब्रिज के साथ. एक टू लेन हाईवे के ऊपर अगर टू लेन ब्रिज हो, इस तरह का ब्रिज के जिस पे दोनों तरफ की ट्रैफिक, जिसमें दो लेन्स हों, दोनों तरफ की ट्रैफिक आने वाली भी और जाने वाली भी दोनों एक ही वक्त में ट्रैवल कर सकें, इसको आप फुल डुप्लेक्स मोड के साथ रिजेंबलेंस करवा सकते हैं. और टेलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट. टेलीफोन में आप देखें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में या PTCL या आम लैंडलाइन जो भी नंबर्स हैं उसके ऊपर आप एक ही वक्त में दोनों तरफ से बात हो सकती है. आपको एक को किसी को भी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है. दोनों तरफ से आप बात कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस में एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर. आप ट्रांसमिट भी कर रहे होंगे साउंड सिग्नल्स और इसी तरह से आप रिसीव भी कर रहे होंगे साउंड सिग्नल्स. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड. ऑल राइट, अभी तक हमने बात की है तीन तरह के मोड्स की. वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिंप्लेक्स मोड. इन सिंप्लेक्स मोड द डेटा कैन ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, उसकी हमने एग्जांपल देखी थी. टीवी एंड रेडियो आर द एग्जांपल्स कि द डेटा कैन ओनली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन. इन हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट साइमल्टेनियसली. उसकी एग्जांपल्स हमने देखी है वॉकी टॉकी. फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फुल डुप्लेक्स मोड. Full duplex mode में data can travels in both directions but not simultaneously. So there is no need to switch. आप एज अ रिसीवर और एज अ ट्रांसमीटर दोनों के तौर पे काम कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल हमने देखी है टेलीफोन लाइन्स. ऑलराइट, नाउ वी टॉक अबाउट द पैरेलल एंड सीरियल data transmission. There are two types of data transmission: parallel transmission and serial transmission. In parallel transmission, as you can see, each bit uses a separate wire. If you look at the figure, there is a sender and a receiver, and there are 8 lines between sender and receivers. There are 8 wires between sender and receiver. So it means data can be sent in parallel. 8 bits can be sent in parallel. एक ही वक्त में 8 बिट्स आप सेंड कर सकते हैं. पैरेलल में आप 8 बिट्स सेंड कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन. इन पैरेलल कम्युनिकेशन द वेरियस डेटा बिट्स आर साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड यूजिंग मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि एक ही वक्त में मल्टीपल बिट्स, मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक्स के ऊपर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ट्रांसमिट भी की जा सकती हैं और रिसीव भी की जा सकती हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन मोड. And in compared to parallel transmission mode, there is a serial transmission mode. Let's see. In serial transmission mode,
as you can see in this figure, from sender to receiver, the bits are sent in serial rather than parallel. There is only one communication link, एक ही communication link है जिसमें से आप bits को send कर रहे हैं. So bits are sent in a serial. Okay, each bit sent over a single wire. हर bit जो है एक single wire के ऊपर हम send कर रहे हैं, one after the other, एक के बाद फिर दूसरी. Parallel transmission is obviously faster, as you can imagine that parallel transmission जो है वो faster होगी. जिस तरह हमने लास्ट उसमें देखा कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्यों फास्टर होगी, क्योंकि एक ही वक्त में आप 8 बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यहाँ पर आपको 8 बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सीरियल में भेजना पड़ेगा. एक जाएगी, फिर दूसरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 5, 6, 7, 8. सो इट विल बी स्लोअर. ओके, अब सीरियल ट्रांसमिशन के दो मोड्स हैं अगेन. नंबर 1 एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन एंड नंबर 2 सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन. In synchronous serial transmission, the data is synchronized between the sender and receiver. What does it mean? सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डेटा की सिंक्रोनाइजेशन होती है. मीन्स एक ही रेट पे, जिस रेट पे आप डेटा को सेंड कर रहे हैं उसी रेट पे रिसीव कर रहे हैं. सो दे आर सिंक्रोनाइज विद द क्लॉक. इनको एक क्लॉक की मदद से सिंक्रोनाइज किया जाता है. सेंडर जैसे ही डेटा भेजता है, रिसीवर उसी वक्त उसको रिसीव करता है और उसी वक्त उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है. उसके मुकाबले में एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती. एक ही रेट पर डेटा को सेंड और रिसीव नहीं किया जाता. इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल्स हो सकती हैं जिस तरह के आप एग्जांपल ले लें. अगर आप वॉइस चैटिंग कर रहे हैं कहीं पे, फॉर एग्जांपल अगर आप स्काइप में वॉइस चैटिंग कर रहे हैं या जूम क्लासरूम में आप क्लास ले रहे हैं, इट हैज़ टू बी सिंक्रोनस. इसको सिंक्रोनस होना चाहिए. आप क्यों होना चाहिए? आप देखें, अगर आप बात कर रहे हैं एक साइड से और दूसरी साइड पे रिसीवर थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन वॉइस कम्युनिकेशन. वॉइस कम्युनिकेशन में ये एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर थोड़ा सा भी डिले होगा तो इट विल नॉट बी अ गुड कम्युनिकेशन. अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. जिस तरह कि आप स्काइप में अगर आप थोड़ा सा डिले हो, या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन आप कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, अगर उसमें डिले हो रही है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो इट हैज़ टू बी सिंक्रोनाइज्ड. द सेंडर एंड रिसीवर should be working at the same data rate. They should be synchronized with the clock. While in asynchronous serial transmission, it is not the case. सेंडर और रिसीवर एक ही रेट पे डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर रहे होते. ये ज़रूरी नहीं है. उसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सिस्टम से एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे सिस्टम की तरफ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही रेट पे सिंक्रोनाइज्ड हो. वो उसमें डिले इज़ एक्सेप्टेबल. ऑलराइट. सो पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ ऑब्वियसली फास्टर, जैसे हमने बात की है, क्योंकि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो इट इज़ फास्टर इन दैट ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम, क्योंकि तमाम बिट्स एक ही वक्त में सेंड की जाती हैं. वेयर एज सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर बिकॉज ओनली वन बिट कैन बी सेंट एट अ टाइम. नाउ यू नो दिस, कि एक ही वक्त में क्योंकि एक बिट होती है ट्रांसफ़र, इसलिए ये स्लो होता है. पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ वेरी कॉस्टली फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट शॉर्ट लिंक्स. पैरेलल ट्रांसमिशन कॉस्टली भी है. Why it is costly? Because you need to establish multiple links. You need to establish multiple channels. So अगर ये short distance के लिए है तो ये acceptable हो सकता है. लेकिन if you want to send data at a long distance, then it is very costly to establish multiple links. अगर एक long distance के लिए आपने डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लिंक्स अगर इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा. तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस जो है वो हमने देखा कि सिंक्रोनाइज डेटा के लिए यूज़ होती है, और एसिंक्रोनस जिसमें कि डेटा जो है उनकी सिंक्रोनाइजेशन आपस में नहीं होती, एक ही रेट पे ट्रांसफ़र नहीं होते. हमने सीरियल और पैरेलल के दरमियान में भी डिफ्रेंशिएट किया है.
हमने देखा कि पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर है और सीरियल ट्रांसमिशन इज़ अ स्लोअर मोड, बट पैरेलल ट्रांसमिशन जहाँ पर फास्टर है वहाँ पर वो कॉस्टली भी है। तो ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो ये एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर को डेटा भेज रहा है तो इट मे बी पैरेलल, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है तो पैरेलल हो सकता है, इससे फास्टर काम होगा। बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेजना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी कॉस्टली टू इस्टेब्लिश मल्टीपल लिंक्स। सो दैट्स इट, थैंक यू।